Hello everyone, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Design Reinforced Concrete Structure subject which offered in 7th semester in GTU. Today we will discuss retaining wall example. Previous lecture discuss retaining wall calculation of basic dimension. Today overview the previous lecture and continue the stability of retaining wall. So first of all, again example design of cantilever retaining wall to retain earth height 5.5 meter. (5.5 meter) above lower ground level. तो ग्राउंड से 5.5 मीटर अबव है. Find the basic dimension. Previous lecture we have discussed basic dimension and carry out the stability check. Today lecture discuss stability check of retaining wall and next lecture design and detail all structure component. Soil bearing capacity 175 mu, angle of repose, unit weight of soil, M20 grade concrete, steel 415, coefficient of earth pressure K, active coefficient, passive, preliminary dimension, basic dimension width of beam 4 meter, width of heel 2.35 meter, stem width at bottom 0.45 meter, toe width 1.2 meter, total height 6.7 meter, height of stem 6.2 meter, toe slab thickness 0.5 meter, shear key dimension 0.45 to 5 meter, top width 0.2 meter assume, shear key depth 0.5 meter assume, this is toe width 5 meter, total height depth of footing 1.2 meter, active earth pressure diagram, passive earth pressure diagram, soil uplift pressure diagram, टोटल हाइट बेस तक है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम में पूरी हाइट लेंगे. स्टीम तक कैलकुलेशन करना है तो यहाँ तक की हाइट लेंगे स्मॉल एच. एक्टिव अर्थ प्रेशर में बेस के एक गामा इंटू हाइट, एक्टिव अर्थ कोएफिशिएंट गामा, डेंसिटी ऑफ सॉइल into height, small height or capital height. Passive earth pressure Kp gamma height. So first step number 3, previous lecture 2 steps discuss basic dimension. Step number 3, previous lecture video as per GTU 3 marks consider. Today lecture 4 marks. Today lecture is as per GTU 4 marks consider. So first of all dimension indicate in this figure.
W1, W2 स्टीम में रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसका W1 हमने बोला है, एक ट्रायंगल पोर्शन है उसको W2 बोला है, हील और टो जो स्लेब है उसकी विड्थ उसमें W3, शियर की W4 और यहाँ पे W5। अब नेक्स्ट, the overall dimension of the retaining wall shown in figure. Consider 1 meter length of wall. Horizontal active pressure at the base. Horizontal active pressure at the base of the wall. K active earth pressure, gamma soil density, height total 1/3 into 80 into 6.7. 14.2 kilonewton per meter square. So this value is 14.2 kilonewton per meter square. So horizontal load. So first of all, load type, horizontal load in kilonewton, perpendicular distance from A, perpendicular distance from A, moment at A. So active earth pressure diagram है, this pressure diagram active earth pressure diagram, base है 14.2, तो total pressure क्या होगा 1/2 into base into height, तो 1/2 base 14.2 into height 6.7 is equal to 134.67 kilonewton. Perpendicular distance from height, h/3 distance maximum pressure लागे એટલે force into perpendicular distance, this force and perpendicular distance h/3, so 2.23 meter. So moment force into perpendicular distance, this value into this value, so 300.31 kilonewton into meter. So a total horizontal moment. So sliding force 134.67 kilonewton this direction, and overturning moment 300.31 kilonewton into meter. Next, vertical load calculation. Density of concrete 25 kilonewton per meter cube, or density of soil 18 kilonewton per meter cube. So load type, vertical load, perpendicular distance from A, moment at A. Steam W1, W2, W3, W4 और W5. जो W1 है उसका डायमेंशन 6.2 into 0.2 into density 31.2 into height 6.7 0.2 into 6.7 into density, जो मटेरियल है वो कंक्रीट का बना है तो कंक्रीट की डेंसिटी इंटू 25, तो टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है वो पता चल गया, मिल गया डाउनवर्ड लोड, वर्टिकल लोड। अब हमें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ से यहाँ 1.2 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 0.2 का हाफ, तो 1.2 प्लस 0.25 प्लस 0.2 का हाफ 1, तो टोटल हो गया 1.55 मीटर। Force into perpendicular distance, this value multiply this value to 48.05 kilonewton into meter। ये हो गया स्टीम का W1। अब हम फाइंड करेंगे स्टीम 2 में जो पोर्शन है वो ट्राइंगल पोर्शन है, दिस पोर्शन, तो उसका एरिया क्या होगा 1/2 into 0.25 into height 6.7 into density, okay, 1/2 into 0.25
into 6.2 meter, sorry 6.7 and 6.2 into 25, 19.3375। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 0.25, 1/2 plus 2/3 into 0.25, 1.37, this value multiply this value, that is for moment 26.54 at base W3, this portion W3, तो 4 मीटर विड्थ है, डेप्थ 0.5 है, तो 4 इंटू 0.5 इंटू 25, 4 इंटू 0.5 इंटू 25, तो 50 किलो न्यूटन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4/2 2 मीटर, तो 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर। शियर की, दिस इज शियर की, this is shear की 0.45 into depth 0.5 into density of concrete 25, तो 0.45 into 0.5 into 25, 5.625 किलो न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.2 plus 0.45 divided by 2, 1.425 मीटर। मोमेंट हो गए 8.02। बैकफिल, एक बैकफिल W5, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2.35 इंटू हाइट 6.2 इंटू सॉइल की डेंसिटी अब हम यूज करेंगे, 2.35 इंटू 6.2 इंटू सॉइल डेंसिटी 18, सोइल डेंसिटी 18, क्योंकि वो पर्सन सोइल में रहता है, तो 262.26 किलो न्यूटन। मोमेंट 1/2 इंटू 0.45 प्लस 2.35 डिवाइड बाई 2, 2.825 मीटर। मोमेंट हो गया 74088 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो टोटल डाउन वर्टिकल लोड, डाउनवर्ड, this value plus this value plus this value, मतलब summation of total downward load 368.26 kilonewton और total moment resistance 923.49 kilonewton into meter। Total downward load 368.26 kilonewton, resisting moment 923.49 kilonewton into meter। Let distance of CG of vertical load from face of the toe from point A is x bar net moment at toe, तो टोटल वर्टिकल के हिसाब से मोमेंट 923.49 और हॉरिजॉन्टल की मोमेंट है 300, तो इसमें से और डिवाइड बाय टोटल डाउनवर्ड लोड, तो x बार हमारा CG 1.69 मीटर। वर्टिकल मोमेंट, हॉरिजॉन्टल मोमेंट, हॉरिजॉन्टल लोड के हिसाब से मोमेंट, वर्टिकल लोड के हिसाब से मोमेंट, हॉरिजॉन्टल लोड के हिसाब से मोमेंट और डाउनवर्ड लोड, तो x बार 1.69 मीटर। अब हम एसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, तो x बार यहाँ से यहाँ तक 1.69 मीटर और यहाँ एसेंट्रिसिटी, तो एसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो E इज इक्वल टू B/2 माइनस x बार, टोटल B/2 माइनस x बार, तो एसेंट्रिसिटी हमें मिल जाएगी
4 B width of retaining wall bottom 4.4 divided by 2 minus 1.69.31. अब मैक्सिमम प्रेशर है तो मैक्सिमम प्रेशर एट टो P max is equal to summation W divided by B bracket 1 plus 6 E eccentricity divided by B. तो डाउनवर्ड लोड 368.26 divided by 4 ब्रैकेट में 1 plus 6 into eccentricity 431 divided by 4 92.6 ब्रैकेट 1 plus 0.465 तो P maximum 134.86 at टो. E minimum pressure at heel summation W divided by B ब्रैकेट में 1 minus 6E by D तो 49.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट टो heel. This is pressure diagram, uplift soil pressure diagram. P maximum at टो 134.86, P minimum at heel 149.25 किलो न्यूटन per meter square. P maximum 134.868 kilo Newton per meter. Soil bearing capacity 175. ओके सेम. सोइल बेरिंग कैपेसिटी 175 दे रखी है और हमारा लोड है वो 134 मतलब सेम. और P minimum 49 0 नो नेगेटिव मूवमेंट. देयर आर नो टेंशन एट बेस. मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव मूवमेंट आए थे तो टेंशन क्रिएट होता है बेस पे, लेकिन यहाँ पे अब 0 है तो नो टेंशन एट बेस. फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग. रिस्टोरिंग मोमेंट वर्टिकल लोड के हिसाब से जो मूवमेंट आई है और ओवरटर्निंग मोमेंट जो हॉरिजॉन्टल लोड के हिसाब से मूवमेंट आई है. फैक्टर ऑफ सेफ्टी मोमेंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय मोमेंट ओवरटर्निंग तो 3.075 1.55 से बड़ा होना चाहिए. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन ओवरटर्निंग सेफ. फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन स्लाइडिंग. तो स्लाइडिंग फोर्स जो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से आया है स्लाइडिंग फोर्स 134.67 किलो न्यूटन. फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू पॉइंट म्यू इंटू समेशन डब्ल्यू. म्यू 0.5 हमें गिवन डेटा में दे रखा है और डाउनवर्ड जो लोड है 368.26 तो फ्रिक्शन फोर्स मतलब 184.13 किलो न्यूटन. तो ये फ्रिक्शन फोर्स है. टोटल डाउनवर्ड लोड फ्रिक्शन फोर्स. तो पैसिव प्रेशर अंडर द बेज ऑफ शियर की बेज है शियर की पैसिव प्रेशर कितना रहेगा. तो ये शियर की हाइट डेप्थ है 0.5 मीटर और बेस स्लैब की डेप्थ है 0.5 मीटर. तो टोटल हाइट हो गई 1 मीटर. तो H इज इक्वल टू 1. तो KP3 soil density 18 height 154 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो टोटल प्रेशर 1/2 into 54 into height 127 किलो न्यूटन. Total restoring force is equal to mu
समेशन W जो अभी हमने फाइंड किया है स्लाइडिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स प्लस शियर की पैसिव अर्थ प्रेशर 184.13 प्लस 27 टोटल restoring force 211.13 किलो न्यूटन. Factor of safety is equal to restoring force divided by sliding force. Restoring force 21113 और sliding force जो horizontal का है 134 वो है 1.57 1.55 से बड़ा होना चाहिए तो सेफ. तो यहाँ तक जो कैलकुलेशन किया हमने स्टेबिलिटी का ये 4 नंबर में GTU में आता है. मतलब एक फिगर स्टेबिलिटी कैलकुलेशन जो बेसिक डायमेंशन कैलकुलेशन के वो फिगर में हमें रिप्रेजेंट करना है. एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करना है, पैसिव अर्थ प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करना है और यहाँ पे सॉइल अपलिफ्ट प्रेशर, बेसिक डायमेंशन, विड्थ ऑफ टो, विड्थ ऑफ हिल, बेस विड्थ, शियर की, बेस स्लैब थिकनेस, स्टीम डेप्थ एट बेस, टोटल हाइट फाइंड आउट किया, बेस स्टीम की हाइट फाइंड आउट किया, विड्थ ऑफ स्टीम टॉप 0.2 एज्यूम. तो बेसिक डायमेंशन स्टैक फॉर स्टेबिलिटी 4 मार्क में GTU में आता है तो इतना कैलकुलेशन करना है, फिगर ड्रॉ करना है, बेसिक डायमेंशन इंडिकेट करना है. उसके बाद ओवरऑल डायमेंशन रिस्टोरेशन कंसीडर 1 मीटर हॉरिजॉन्टल एक्टिव प्रेशर फाइंड करना है, वर्टिकल एक्टिव प्रेशर फाइंड करना है ऑल पॉइंट पे. फिर एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना है, P मैक्सिमम, P मिनिमम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन ओवरटर्निंग और फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेन स्लाइडिंग, दो चेक करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरटर्निंग और फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग. फिर पैसिव अर्थ प्रेशर अंडर बेस, टोटल रेजिस्टिंग फोर्स, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्लाइडिंग, रिस्टोरेशन फोर्स डिवाइड बाय स्लाइडिंग फोर्स 1.55 से बड़ा रहना चाहिए. चेक ओके. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चेक कैलकुलेशन करें डिजाइन ऑफ स्टीम, डिजाइन ऑफ हिल, डिजाइन ऑफ स्टोक. वो है वो GTU में 7 मार्क में कंसिडर रहता है. तो ये टोटल अभी तक जो हमने एग्जाम्पल किया है वो 3 और 4 7 मार्क का हुआ है. ठीक है. ओके.